morning, sir. Good morning. So this is Sir, yes. Sir, when the number of observations are even, then you explain the concept, but I did not understand. So please explain again. Even wala I have not explained it yet. Sir, I will. sir, Yes. why we not do all the questions of simple interest? Beta, because there is not much time left because of online classes. We are not getting that much of time. So once we finish the syllabus, then we will think about completing that also. Okay. Okay, sir. So if suppose we are not able to do these questions in the class, then they will not come in your exams also. Okay. So we will think of it. If we are able to do them, then only they will come in your exams. Otherwise, not. Okay. We come in exam. Rest of questions we not do. The questions that we have not done, they will not come in We the come. exam. Okay. Okay, sir. So yes, now in this period, it is a combined class of 7th C and 7th A. In 7th A, we have not started this chapter yet, but in 7th C, we have started doing median. तो 7C को मैं बस एक थोड़ा सा टॉपिक समझा रहा हूँ. Let me complete this first, then we will talk about something else. Let me finish this. I was explaining this topic to 7C students. Okay, 7th A students, can you wait for some time? 5 minutes? Yes, sir. 5 or 6 minutes? Okay. Yes, sir. Okay. 7th A. Can you all please write down your section? Edit your name and then mention your section after the name. Okay. Everyone. Aditya Tiwari there. Aditya beta, how are you? Tiwari ji. हाँ सर आया हूँ क्लास में. अरे वाह बेटा, very good and nice to see you in the class. But what we are doing? Median chapter. We are doing median. मतलब 7th C students are doing median. 7th A have not started this chapter yet. So I was explaining this topic to 7th C students. Let me complete this topic. It will take 5 minutes. After 5 minutes, we will discuss something which is common for both of you. Okay? Is it okay? So I need 5 minutes from 7th A students. Can you give me 5 minutes with 7C? Okay. So you can also listen what I'm explaining. Okay. Anji. Agrim Saxena, you're saying something? Your voice is not coming. Agrim. No, No, voice. sir. I'm not doing anything. Achha. Okay, आ गए सारे बच्चे 7C वाले आ गए ready all of you 7C. Yes, sir. Okay. Yes, sir. शुरू कर दें. It's very cold today. Very very cold. तब आदित्य Yes, मिश्रा sir. और लक्षान्य की वजह से हो रहा है. यही दो बच्चे हैं जो एसी चला रखे हैं. इन्होंने अपने घर में इतने बड़े बड़े एसी 5000 टन का एसी चला रखा है. उसकी वजह से हम लोगों को ठंड झेलनी पड़ रही है. Sir, 5,000 ton is 50 lakhs kg. तो मालूम है इनका ये कौन है हमारे क्या कार्तिक चौहान, उसके बारे में तो जानते ही होगे.
वो अपने बेडरूम से वॉशरूम तक जाने के लिए ओला करके जाता है। अभी ये पता है 2 दिन से ठंड क्यों बढ़ गई है? पता है क्यों बढ़ गई है? सर वाई? सर क्यों? सर पता नहीं। ये कार्तिक चौहान अपने फ्रिज में से वो फ्रीजर में से वो आइस निकाल रहा था, इस वजह से पूरी दुनिया में ठंड फैली हुई है। तब कार्तिक नो सर, सर ये सब झूठ है। इतना बड़ा फ्रिज है इस आदमी का, इसने बस फ्रिज खोल के आइस निकाली थी, ये सब इसकी वजह से। अरे नहीं सर, ये सब झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है, ये सब सच है। मैंने खुद देखा, मैंने एक बार इसके फ्रिज के अंदर आइस स्केटिंग खरीदी है। कार्तिक चौहान के फ्रिज के अंदर मैं गया हूँ। हाँ, फ्रिज के अंदर आइस स्केटिंग करी है मैंने। अपना सर ये कितना बड़ा फ्रिज है? अपना ये हिमालय पर्वत नहीं लगता? सर जब कार्तिक को ठंड लगती है तो उसी में जाके बैठ जाता है। अरे ये अपना हिमालय नहीं लगता, वो इसके फ्रिज के अंदर ही तो आता है। हिमालय पर्वत नहीं आती अपनी, ये हिमालय रेंज, वो Yes, फ्रिज sir. में- यस सर। कार्तिक चौहान के फ्रिज में जो फ्रीजर में जो बैक वाला पोर्शन है, राइट बैक कॉर्नर जो है, वो हिमालयन लगता है। Sir, please tell the method of even. चलिए मेथड पे आ जाते हैं। ओके, कार्तिक बेटा, मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दिया, तुम नाराज तो नहीं हो? सबके सामने मैं सर नाराज झूठ बोल रहे हैं। अरे अच्छा, बताना नहीं था मतलब सबको? अच्छा, ठीक है यार, आई एम सॉरी, गलती कर दी मैंने, बता दिया। इसने मुझे मना कर दिया एक्चुअली बताने की, सर तुम मत बताइएगा। सर नाउ 7th day will start. नहीं बेटा नहीं, अरे ये बात थोड़ी करनी थी मुझे। मैंने टॉपिक अभी पढ़ाना शुरू नहीं करा। So I was explaining this topic to 7 C students. ये मैं complete कर दूं, then we will discuss something common. Okay. So when there are even number of observations, let us take an example. I am writing the observations in ascending order directly ascending order में लिखता हूँ। तो 5, 6, 8, 12, 17, 23, 28, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं 31. Okay, let us take these observations. Okay, how many observations are there? 8. Is equal to 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So what is n? N is even or odd? Even. Even. N is even in this case. Even. So which method we will use, case 2 or case 1? Case 2. Case We will use Case 2. Case 2. Case 2. तो हमको सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, केस 1 यूज करना है या केस 2 यूज करना है. ओके, दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n. सो केस 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज n by 2th term. That means what is the value of n? 8 upon 2th term. 8.2 8 upon 2th term. Plus 2.2 8 plus upon 1. 2 plus 1. 8 upon 2 plus 1 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो भी इनकी वैल्यू आएगी दोनों टर्म्स की upon 2. upon 2 कर लेंगे. For example, now 8 upon 2th term, that means 4th term. 4. We are 4. talking about the 4th term. And 4 plus 1, 5th term. 5. 4th term and 5th term. Can you tell me what is the 4th term here? 1 2 3 4. 4th term is 12. And 12. what is the 5th term? 1 2 3 4 5. 5th term is 17. So 12 plus 17, इन दोनों को ऐड करेंगे and 2 से डिवाइड कर लेंगे. What is the median? इन दोनों का एवरेज 12 plus 17 upon 2. 29, 14.5. Answer. Got it? Everyone? Median आ गया 14.5. Is it clear to all of you? Okay, 7C? sir. Yes, sir. Yes sir.
तो आप लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि मैंने n/2 क्यों करा? किसी के दिमाग में डाउट है why only n/2? Sir, I. You have a doubt? Very good. तो n/2 करने से क्या होगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पर, आप सोच रहे हैं अगर मैंने यहाँ पर n+1/2 क्यों नहीं करा? n+1/2 पहले मैंने क्या करा था? n+1/2 करा था केस 1 में, करा था नहीं करा था? Yes, sir. याद है? So, तो here the value of n is even. अगर मैं 8+1/2 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो 4.5 मिल जाएगा। 4.5 ऑब्जर्वेशन कौन सा है यहाँ पर? Sir, no. sir, there is no. दैट इज व्हाई ये नहीं लेना No, आपको चलेगा। such a bus. n/2 करेंगे तभी तो आप यहाँ पर ये मिडिल से दो ऑब्जर्वेशन से पहुंचेंगे, n/2 एंड n/2+1। n/2+1 का Yes, मतलब sir. 4th एंड 5th, दो लगातार ऑब्जर्वेशंस आपको मिल जाएंगे जो बीच में आ रहे हैं, 4th एंड 5th, if you do like this. Okay, Sir, in even numbers, we Okay, can sir. take also odd numbers. what? Sir, in this sir, you have taken 17, but 17 is an odd number. बेटा हम तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ले रहे हैं। 8/4 आया, फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? 12 है। तो उससे मतलब नहीं है कि वैल्यू इवन है या ऑड है, उससे मतलब नहीं है आपको। फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 12 है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 17 है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वैल्यू फोर्थ ऑब्जर्वेशन की इवन है या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इवन है या ऑड है, डजंट मैटर। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी यू विल टेक दोस वैल्यूज एंड देन फाइंड द एवरेज, मिल जाएगा। ओके, Okay, sir. क्लियर एवरीवन? So this is the method of finding median. Yes, sir. Clear. Understand more clearly if you Yes. if we do the exercise, we will understand this even better. Okay. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस पीरियड में? अभी यार मेरे चला जाएगा 7th A का पीरियड यार, इसीलिए तो ये होता है ऐसा। पता है क्या होता है? अजीब सा ही केस है। 7C का अरेंजमेंट बहुत लगते हैं मेरे साथ। सही तो अच्छी बात 7C है। के साथ किसी और का अरेंजमेंट नहीं लगता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। आपका जब पीरियड होता है अपना 7C का, आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ आपका अरेंजमेंट नहीं लगता। जस्ट अ मिनट, सर आप ज्यादातर एब्सेंट नहीं होते सर। सर अभी तक बस आप सर पीटीएम वाले दिन एब्सेंट हुए थे। यस सर, और सर कभी भी एब्सेंट नहीं हुआ सर आप। आई एम सॉरी देयर वाज एन इमरजेंसी कॉल। यस, हाँ बेटा, कोई पूछ रहा था अभी, यू वर आस्किंग समथिंग। सर मैं कह रहा था कि सर आप कभी भी एब्सेंट नहीं होते, इसलिए दूसरे टीचर एब्सेंट होते तो आपको पीरियड दिया जाता है। अरे मैं बेटा गरीब आदमी हूँ, मेरे बारे में सोचो जरा, देखो एक बार मैं एब्सेंट हो जाऊंगा तो सैलरी कट जाएगी, कौन संभालेगा बेटा? अब लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे कोई दूसरा टीचर एब्सेंट हुआ तो मेरे को डबल सैलरी मिल रही है अरेंजमेंट लेने की, ऐसा होता नहीं है। बट मैं एब्सेंट हो सर जाऊँ। आप बहुत मेहनती टीचर हैं। ये देखें, ये लड़का तो मक्खन ऐसे Yes, लेके sir. बैठा है अपने बगल में।
लेकिन ये मौका ढूंढता है, ये पहले से तैयार बैठता है ऐसे हाथ में लेके, पहले से हाथ में भर लेता है ये बहुत सारा और तैयार बैठता है, और जैसे ही मौका ढूंढता था ऐसे ऐसे मार देता है कैमरे। लक्ष्य कुमार, लक्ष्य का सीक्रेट खुल गया। यस सर। बड़े क्यूट हो तो मालूम है। अरे सर। चलिए, so any other doubt in this topic, anyone? आपको कुछ डाउट था इसमें? No, sir. No, sir. नो डाउट। No, अभी sir. हम क्या करें, वी Sir. आर थिंकिंग अबाउट 7th day का सिलेबस Sir. जाएगा। हाँ जी Sir, if not all the numbers are given, so sir, how we will do? if not all the numbers are given, one or two questions are there of this type in the book also, so I will tell So you for what to example, 30 from 33 to 74. So like this. 33 to 74। सर अगर ऐसे कुछ दिया हो तो ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, बट दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, वो एपी में आपको बताएगा। एपी सुना है आपने? हैव यू एवर हर्ड ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सर एपी नहीं सुना। एपी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको उसमें कराया था थोड़ा सा, आई थिंक व्हेन देयर वाज नंबर सीरीज, आपने करी थी ना रीजनिंग क्लासेस में, नंबर सीरीज, यस सर। है ना? So Yes, sir. I gave you a question like this. Suppose 3, 6, 9, 12. Can you tell me what is the next sum of the series? 3, 6, 9, 15. 15 the 15 15. है ना? Easy है ये तो बता। हाँ, अगले इसके बाद 18 आ जाएगा। यस करेक्ट। अच्छा, मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल let's start with 13, 17, 21, 25, 29. Can you tell me the next term now? 33 the 33 Yes, the 33 the next term. ये तो 33. 33 we बता are दो। doing plus 1 अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ what will be the 205th term of this AP of this series, तो आप कैसे बताएंगे 205th term? 205वें नंबर पे क्या आएगा? please wait for 1 minute अरे 1 मिनट क्या 10 मिनट ले लो तो भी मुश्किल है बताना। थोड़ा मुश्किल है नहीं? ये तो मैंने ये फिर भी इजी है। द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू हियर, इट इज स्टिल अ लिटिल इजियर। तो ये क्या है? so 853 853 कहाँ से, कौन सी मैथ लगाई है? उसमें चलो क्या है 853, नहीं बेटा 853 नहीं है, नहीं है। ओके चलो वो बाद में बात करेंगे, कैसे निकालना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पर आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, दिस इज एन एपी। ये एक एपी है। एपी क्या होती है? वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज सेम। व्हाट इज द गैप बिटवीन 13 एंड 17? कितना गैप है? 5. 4 का। 4. Again the gap is 4, here also it is 4, here also it is 4. This type of series is called arithmetic progression. Okay, so this is a topic of class 10th class का topic है। You will study this in detail in class 10th। तो उसमें आपको सिखाया गया कि अचानक से कोई भी आगे की भी टर्म अगर आपको निकालनी है, 250th टर्म फॉर एग्जांपल मुझे निकालनी है, you can find it very easily with the help of some formula and a method is given, so you can find it, but अभी आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। मिश्रा जी सुन रहे हैं मेरी बात को? जिसमें फॉर एग्जांपल a series is given, there are numbers from 3 to 74, ऐसे कुछ बोला था तुमने? 33 से 74 का नंबर लिखे, उसमें अचानक से आपको पता बीच में कोई टर्म्स मिसिंग है, मिसिंग टर्म्स हैं जैसे वहाँ पर, so you have to find the median in that case. So this type of question will not be there because it will require some concept of AP का concept वहाँ पे use होगा, which you have not studied till now.
Okay, this is the reason. Okay, sir. Sir, do you know the universal fact that without that technology, hacking, computer, software, hardware, and programming, these all concepts, the ultimate base of this is mathematics. The ultimate trace of this is mathematics. Yes, sir, because computer and technology require numbers to solve this. As you have heard Yes, sir. about random access memory, RAM. Yes. So the memory unit in that is also in numbers. So the ultimate base is mathematics. Yes. That is the true. Maths is the base of almost every concept related to technology. Yes. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Like Sigma. So it is in computer also. The even the language आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं शायद I think these binary numbers. Are you studying? Yes, sir. Sir, programming. Sir, पढ़ चुके। Yes, sir. Sir, पढ़ चुके हो? Programming code, Python, Scratch, HTML. Yes, sir. HTML, CSS, Python. JavaScript, Python. So all these Yes, sir. programming languages, everything that you type on computer or whatever, the language is first converted in binary. For Yes, sir. example, 0 and 1. Yes, sir. 0 and 1. computer, So it is the only language understood by the computers or binary language. तो वही है. So that is why the base is mathematics only. यही है. And आगे जाकर के till now you have only studied binary numbers. आगे जाके you will be studying hexadecimal numbers. Hexadecimal number पढ़ We लिया? have Yes, sir, we studied have them, sir. studied that. Sir, अच्छा, octal, Sir, hexadecimal. octal, hexadecimal. अरे वाह, very good. तो बहुत बढ़िया बात है. अभी से ही पढ़ लिया. सर Then- हेक्साडेसिमल में ABCD आती है सर. Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. ABC. 9 के बाद A आ जाता है ना? सर 10 से लेकर आती है सर ABCD. 10 से लेकर F. 15 तक A B C D E F. 10 11 12 13 14 15 A B C D E F. Yes, sir. Yes, sir. मैंने भी पढ़ी है, देख लो. I have done programming also. So I have done assembly language programming. I have made some softwares also which were very useful. मैंने शायद बताया हुआ है आप लोगों को. Do you know No, this? sir. नहीं बताया. I have done some thesis in my Sir. tech. Sanjeev. Sir, in 5, 7, 9, and 12, if the question is given, 5, 7, 9, and 12, the observation number will be 4 and the median will be 8. 5 7. 9 and 12. Yes, the median will be 8 in this case. Number of observations are 4 and the median will be 8. Average of 7 and 9. दोनों का average 8 आ जाएगा. Okay, sir. Sir, only 1 minute is left. अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? Sir, 11. The period is started. Yes, sir. 11 minutes are left. The period is started at 11:15. Yes, sir. 11:15. मैं मतलब बता ही देता हूँ. सर 11:55 तक 25 चलेगा. हो गए. So I was telling you that in my college days when I was doing my MTech, I have done a thesis where I did programming on MATLAB. There is a software known as MATLAB. Yes, sir. NetLab and GitHub. MATLAB, MATLAB. उसकी full form होती है Mathematics Laboratory. The full form is Mathematics Laboratory. Short में बोलते हैं MATLAB. So in that software I have done programming. It is a very high-fi software. Takes a lot of space in your computer. So And sir, we have to buy this also. Sir, we have to buy.
it. You have to take a paid version of it. Acha, in that I have done, do you know what project I made? I made a digital filter. I increased the processing speed of a digital filter. Digital filter सुना है कभी आपने? Sir, digital filter. Yes, sir, I Sir, know what what is you have it? done. Sir, you first you have programmed the filter, then sir you connected an USB with your laptop and then send the program file to it. अच्छा मैं बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई डिड. डिजिटल फिल्टर क्या होता है? फिल्टर तो सबने सुना होगा, बट फिल्टर क्या होता है? व्हाट इज अ सिंपल फिल्टर? व्हाट डू यू नो अबाउट अ फिल्टर? का काम क्या है कि आपको जो शुद्ध करना। उसमें से जो सपोज देयर इज समथिंग वांटेड एंड समथिंग व्हिच इज अनवांटेड, तो फिल्टर का काम क्या है? जो वांटेड चीज है उसको पास थ्रू कर देती है और जो अनवांटेड चीज है उसको रोक देता है. फिल्टर का काम यही है ना, अनवांटेड चीजों को रोक देना, स्टॉप कर देना, है ना? Yes, फॉर sir. एग्जांपल, आप जैसे सपोज यू मेड टी, आपने वो चाय छानने वाली छन्नी, वो भी तो इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिल्टर, है, राइट और नॉट? जिसमें आप चाय छानते हैं, फिल्टर ही Yes, तो है. sir. फिल्टर का Yes, मीनिंग sir, ये होता है. filter है। फिल्टर कैसे है वो? इफ यू व्हेन यू मेक टी एंड उसमें टी में कुछ आप वो भी डालते हैं, टी के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, पार्टिकल्स, but that after making the tea you don't want them to be there in your cup. So cup, when you pour your tea in the cup, you Suddenly straight. filter it before pouring into the cup. तो filter का काम ये है कि you remove the unwanted particles. Okay, so I made a digital filter. Digital filter क्या होता है? Let me tell you what is a digital filter. Do you know all around you there are a lot of frequencies. बहुत सारी frequencies होती हैं हमारे हर जगह चारों तरफ. Every time the frequencies are coming, even in your TV Sir, channels. radiation. हाँ जी, Sir, radiation or frequency? frequencies देखिए, जैसे for example your TV is receiving a lot of frequencies. All the channels are coming at different frequencies. TV से अच्छा example रेडियो है. रेडियो के बारे में आपने सुना होगा. There is a channel 92.7 FM. सुना है आपने? Yes, sir, 92.7 Big FM. हाँ, तो Yes, what is sir. 92.7? सुना, 92.7 is its frequency. And there is one more channel 91.9 FM. ऐसा भी आपने सुना होगा. Sir, the full form of FM is frequency modulation and Yes. AM is amplification modulation. Yes, amplitude modulation. Yes, sir. Amplitude modulation. So frequency modulation and amplitude. FM की full form होती है frequency modulation. So 91.9 FM, 92.7 FM and और भी channels होते हैं. 100.4 FM भी है. All these channels are Sir, there. जितने ज्यादा frequency उतना बढ़िया quality. नहीं, not like that. Sir, but what is the difference in frequency and amplitude? Frequency is the, उसका ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा. अभी तो you have not studied all these things in detail. Frequency क्या चीज होती है? जैसे कोई सिग्नल है, ये आपका एक सिग्नल है, ठीक है? This is a signal where Yes, sir. frequency Yes, is the sir. waves, the number of waves that are coming in 1 second. Suppose एक सेकंड में बहुत सारी waves आ रही हैं जल्दी. That means high frequency. Frequency is high. जितनी ज्यादा waves आ जाएंगी जितने कम टाइम में, Sir, like that means the frequency is heart very high. Amplitude क्या होता Sir, है? like computer have a frequency of 4 gigahertz हाँ, वो or that is, 3.5. हाँ, जितनी ज्यादा frequency होगी मतलब स्पीड उतनी ज्यादा है कंप्यूटर की आपकी, ठीक है? Sir, they are electromagnetic waves or radio waves. कंप्यूटर के केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का फायदा ये है कि दैट मींस स्पीड इज मोर, ठीक है? इन केस ऑफ कंप्यूटर्स. ओके. एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द वेव. वेव की हाइट, यहाँ से ये जो मैंने एक बेस लाइन बनाई है, बेस लाइन से कितना ऊंची जा रही है वेव, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ओके. तो ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, ये अभी आपने इतना कुछ अभी पढ़ा नहीं है. दिस इज, सर जैसे सर वो हार्ट दिखाते हैं सर. सर वो हाँ, दैट इज हार्ट होता that है is that और is सर वो also सीधी लाइन आ जाती है फिर. that is also that is also kind of a wave. Sir, heartbeat in hospital तो computers. बंदे का काम खत्म. हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा
फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज हो जाएगी यानी कि तब भी खतरे वाली बात है, और बहुत ज्यादा स्लो फ्रीक्वेंसी आ रही दैट इज आल्सो डेंजरस। सर उसके बाद सीधी लाइन आ जाती है सर, खत्म बंद। अगर सर सर उसका सीधी हो मतलब गई तो तो सर डैडी मर होता है, जाएंगे। अगर Sir, that सीधी is लाइन shown आती in है तो। movies. अरे नहीं बेटा, ऐसा मैटर नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो पहले, ये तो बेकार की बातें लेके बैठ गए। चलो मैं जो बता रहा था, व्हाट आई हैव डन, आई मेड अ डिजिटल फिल्टर। उसमें क्या है वो आपको, जैसे मैं बता रहा था, देयर आर लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कमिंग इन योर radio, whatever radio you are using, there are radios in mobile phones also. So उसमें भी आप you are receiving lot of frequencies, but when you select only one channel to play 92, suppose you want to play 92.7 FM in your phone or in your radio, whatever radio, car radio में भी play करते हैं, तो उसमें आपको 92.7 FM play करना है। आपके पास तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, तो वही पर्टिकुलर चैनल कैसे प्ले होगा, वो काम पता है कौन करता है? वो काम करता है डिजिटल फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है? द फिल्टर स्टॉप्स रिसीविंग ऑल द अदर फ्रीक्वेंसीज, उन सबको स्टॉप कर देता है, और जो आपकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, उसको पास ऑन कर देता है, मतलब उसको पास थ्रू करवा देता है। यानी कि 92.7, if you are selecting the channel 92.7 FM in your radio, तो 92.7 FM वाली फ्रीक्वेंसी पास ऑन हो जाएगी और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रोक दिया जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ डिजिटल फिल्टर। आर यू गेटिंग व्हाट इज डिजिटल फिल्टर? यस सर। Yes, Yes sir. sir. तो यही कॉन्सेप्ट आपका टीवी चैनल्स में भी यूज होता है। मैंने क्या काम करा, आई हैव इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ डिजिटल फिल्टर। उससे क्या होगा, आपने देखा होगा कई बार आपके टीवी की स्क्रीन में व्हेन यू स्विच ऑन टू डिफरेंट चैनल्स इन योर टीवी, उसमें थोड़ा सा बीच में ब्लैक स्क्रीन आती है। हैव यू एवर नोटिस्ड इट? जब आप एक चैनल से Yes दूसरे sir. चैनल स्विच करते हैं, वो पता है क्यों आती है? Sir, it is written as HDMI1 and all that. हाँ, वो थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन, चैनल चेंज करने पर जो ब्लैक स्क्रीन आती है, उसका रीजन क्या है कि फिल्टर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फिल्टर की वजह से है। फिल्टर ने एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में स्विच ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लिया। अब नाउ इफ आई इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फिल्टर, तो आपकी टीवी के बीच में जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, वो उसका टाइम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो बहुत जल्दी से चैनल चेंज हो जाएगा। सो दिस वर्क आई हैव डन इन माय एमटेक। अंडरस्टूड क्या करा है मैंने? यस सर, अंडरस्टूड। Sir, but these waves are electromagnetic or radio waves. तो सर These आपने are radio इसके waves. क्या किया? These are radio waves. सर फिर Okay, आपको sir. सर ये जो इन्वेंशन है सर दे देना चाहिए था सर। हाँ, I have applied for patent. मैं Sir, अपनी we are को सेल taught that करूँगी तो मेरे पास भी कार्तिक चौहान जैसा पैसा आ जाएगा मेरे पास। Sir, we are taught that radio is made by Marconi, but it is actually made by Jagdish Chandra Basu. सर ये इतना Yes, डिटेल sir. में भी हो सकता है। Sir, in Hindi literature we have studied No that. sir, it Sir, was in in sixth Sixth, class last Hindi lit. chapter. अच्छा, Yes, sir. जगदीश चंद्र बासु हैज मेड इट। वेरी गुड। सर उस चैप्टर के Sir, दूसरे पेज पे Marconi लिखा था, tested it first. अच्छा, ओके। दूसरे पेज की फर्स्ट पैराग्राफ में। सर मुझे चैप्टर याद ही नहीं आ रहा सर, इनको पेज नंबर भी याद है। Sir, it was in the last chapters of Hindi literature book. So how I did that, मैंने वो करा कैसे था? I did it with the help of programming and all that on computer, तो उसकी हेल्प से मैंने करा था। So this sounds very easy, अभी तो सुनने में बहुत easy लग रहा है, कितना जल्दी सेलेक्ट करके इतना आसानी नहीं से। सर बहुत, नो सर But बहुत मुश्किल होता है it सर, सब हमें सर। requires a lot of study and knowledge, तब जाकर के इतना छोटा सा काम होता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इंजीनियर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो इंजीनियर्स होते हैं, वो कितना ज्यादा दिमाग का यूज करते होंगे और कितनी ज्यादा पढ़ाई करते यस सर, यस सर, ऑर्डिनो रोबोटिक काम बनाने के लिए। यस, आई हैव मेड अ, वो भी मैं बता चुका हूं। आई थिंक आई हैव मेड अ रोबोट आल्सो इन, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ रोबोट जिसके हाथ पैर होते हैं, वैसा वाला रोबोट नहीं। रोबोटिक सर रोबोटिक काम में सर टोनी स्टार्क वन। Sir, have you bought servos and ordinance? I participated in a competition in IIT Roorkee
There I won the first prize. In IIT. Sir, congratulations. Sir, तब तो बहुत congratulations. साल हो गए. At least it was at least 10 years ago. 9 years ago at least. 9 or 10 years ago. Sir, then you have also bought Arduino Raspberry Pi, sir, for programming. ये क्या होता है? Sir, from सर जैसे हमें प्रोग्राम ट्रांसफर करना होता है सर रोबोटिक आर्म में, तो हम सर सर्वो मोटर से कनेक्ट करते हैं और सर उससे Arduino PI और रिले मॉड्यूल से कनेक्ट करते हैं और फिर प्रोग्राम डाल देते हैं उसमें और सही वही प्रोग्राम रन होता है. all this I have not studied. Okay, चलो class over हो गई है. That's it for today. We will meet. सर टाइम इज 11:56. sir, from which college you have done